Hello students, welcome to Cash 25 Science Academy YouTube channel. This is Pradesh Mishra. I welcome you all. If you have subscribed to our channel, thank you very much. If not, then do go through this video. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर सब्सक्राइब करिए. हमारे चैनल पे students will get all the videos related to physics, chemistry, maths and biology of class 11 and 12 science. Very recently we have started uploading videos for class 10 students also, जहां पे SSC syllabus के हमने Science 1 में ऑलरेडी 3 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं. Science 2 में 5 chapters we have covered up till now. Maths में also we have covered probability by multiple videos and also I have kept paper solving of carbon compounds chapter. लास्ट 3 साल के पेपर्स मैंने सॉल्व किए हैं. So you can go through all those videos and if you have friends who are in SSC board right now 10th standard, you can pass on those links to those students and help them to revise all the chapters of their SSC syllabus. Now we have started a new series for CBSE class 10 students, जहां पे मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ लाइफ प्रोसेसेस डिस्कस किया था वेरी शॉर्ट में. सो ये पूरा जो सीरीज है वीडियोस का, इसमें मैं क्या करने वाला हूं आपके साथ 1 by 1 चैप्टर वाइज रिवीजन करूंगा. तो मोस्टली सारे वीडियोस 30 to 40 मिनट्स के होंगे, जिसमें पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो, रिवाइज ऑल द कांसेप्ट्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर एंड देन गो फॉर पेपर सॉल्विंग. सो उससे क्या होगा, क्विक रिवीजन, क्विक लाइव रिवीजन. आपको जो सारे टेक्स्ट बुक के कांसेप्ट्स हैं उन्हीं को, टेक्स्ट बुक के इमेजेस को तो नहीं, I'll try to use same images but I have also used certain images from net जिससे आपको काफी simplified concept नजर आए. But text wise, the content wise, I have kept myself restricted to CBSE content only. So let's quickly start with today's video students. आज हम क्या करने वाले हैं, how do organisms reproduce. This is the chapter which I am handling today. And इस chapter में you have asexual reproduction, you have sexual reproduction. Asexual में we have different processes and then sexual reproduction में we will discuss sexual reproduction in plants, sexual reproduction in animals. That is human beings के केस में अपन डिस्कस करेंगे. And lastly we will end the video by discussing about reproductive health. So let us quickly start the video. First जो slide आपको दिख रहा है, that is do organisms create exact copies of themselves. That is very important question to ask. And अगर आपको mitosis and meiosis का concept आता है तो आप इसका आंसर जरूर दे पाओगे. If I know meiosis and mitosis students, I am very much sure that meiosis involves recombinations. Therefore, the sperm cells or the ovum which are produced by the respective organism, respective gender, when they fertilize each other, जब fertilization होता है, if I take example of human beings, so when sperms will fertilize ovum, then there is mixing of different genetic characters which might result into offspring being genetically non-identical to parents. But if I am talking about mitosis students, which happens in case of asexual reproduction, then I get genetically identical offsprings. यानी जो बच्चे होंगे वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे पेरेंट्स का, इसका चांसेस है. सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब ये थोड़ा सा उल्टा हो गया है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां आएगा मियोसिस में स्टूडेंट्स, ये यहां होगा, एसेक्सुअल वुड बी ओवर हियर. सो ये एक मिस्टेक हो गया मुझसे, ये आप प्लीज इन्वर्जन इसका करोगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल कम ओवर हियर, asexual will go over here. So mitosis किस में दिखता है, asexual reproduction में, and meiosis किस में दिखेगा, sexual reproduction में. Okay, let's go ahead students. Next point. So next point is variation significant or is it important? Yes, variation is very much important. Simplest example अगर आप मैं आपको दे दूं तो it has to be Lamarck theory. Lamarck theory ने क्या बोला था, Lamarckism जो जिसको हम जानते हैं, अच्छे वर्ड Lamarckism नाम से इस थियरी को हम जानते हैं. Lamarckism ने क्या बोला स्टूडेंट्स, उसने बोला कि जो सर्टेन स्पीशीज ऑफ जिराफ थे, तो जिन जिराफ का नेक लॉन्गर हो गया, दे सक्सेसफुली फेड देमसेल्व्स, उन्होंने अपने आप को खाना दे पाए. जो हायर हाइट पे या अल्टीट्यूड्स पे जो लीफ थे, पत्ते थे, उनको वो खा पाए. और जो जिराफ यहाँ पे आप देख रहे हो जिनका नेक लॉन्गर नहीं हुआ, उनको खाना नहीं मिला. जब नीचे के लेवल के पत्ते खत्म हो गए तो जो ऊपर के पत्ते हैं उनको ये नहीं खा पाए. देयरफॉर ये जो वेरिएशन है लॉन्गर नेक वाला, ये एडवांटेजेस साबित हुआ किसी किसी जिराफ के केस में. एंड सच वेरिएशंस which were advantageous, इवोल्यूशन ने बोला, इवोल्यूशन की सारी थियरीज बोलती हैं, डार्विन ने भी ये पॉइंट आउट किया था कि ये वेरिएशंस, these variations are carried on into the generation, next generations में भी वेरिएशंस कैरी ऑन होंगे. और धीरे धीरे आप देखोगे जो शॉर्टर नेक वाले जो जिराफ है वो गायब हो गए, सो जिराफ के नेक लॉन्गर होने लगे. सो दिस इज वन एग्जांपल ऑफ वेरिएशन वेयर वेरिएशन proved to be very much advantageous for this creature. Hence, let's move ahead students. Now coming to the main point of the chapter. ये जो मैंने पहले 2 पॉइंट डिस्कस किए आपके चैप्टर के फर्स्ट 2 पेजेस पे बहुत शॉर्ट में दिया गया है. Now I am coming to the main crux of this chapter, which is
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. सो कितने टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं स्टूडेंट्स? वी हैव टू टाइप्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. Asexual reproduction will only involve mitosis, that is division of cells, but sexual reproduction essentially involves meiosis also. meiosis बहुत जरूरी हो जाएगा यहाँ पे. ओके, लेट अस गो अहेड. सो सेक्सुअल एसेक्सुअल वैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे स्टूडेंट्स. ये टेबल मैंने एसएससी के टेक्स्ट बुक से लिया है. दिस इज वेरी गुड टेबल. आप सीबीएसई के स्टूडेंट भले हो, आपका बोर्ड भले अलग है, बट कंसेप्ट चेंज नहीं होते. So you can go through this table and very easily we can differentiate between sexual and asexual students. Reproduction that occurs with the help of somatic cells is known as asexual reproduction. And what about sexual? Sexual reproduction में we involve sperms and ovum, that is gametes. Sex cells are involved over here, not the autosomes. Okay, next. Over here, male and female parents are necessary. So two parents are necessary in sexual reproduction, while only one parent is enough for asexual reproduction. We will see the types of asexual reproduction very shortly. So then you will realize why second point is valid for asexual reproduction and why it is valid for sexual reproduction also. Okay, next. This reproduction, which is asexual reproduction, occurs with the help of mitosis only. But in case of sexual reproduction, both the divisions are important because first step जो होता है students, production of जो germ cells होते हैं, production of germ cells मतलब क्या? Production of sperms and production of ovum. इन दोनों के प्रोडक्शन के लिए meiosis is very very important. meiosis को हम एक और नाम से जानते हैं reduction division. So उसकी वजह से ही sperms and ovum का प्रोडक्शन होता है. मैं ये सारी बातें with regards to human beings कर रहा हूँ because आपके सिलेबस में human beings का ही reproduction डिस्कस किया गया है. ओके, एंड देन फाइनली जब एक बार जाइगोट बन जाए, जब एक बार एम्ब्रियो की तरफ प्रोसेस बढ़ने लगेगा, तो देन माइटोसिस की भी जरूरत पड़ती है. सो meiosis, mitosis, the first step has to be meiosis where fertilization will happen, where thereafter fertilization will happen. So meiosis is needed to produce germ cells, that is sperm and ovum respectively in male and female. Okay, next point is sexual reproduction में new individual formed by this method is genetically different from parents. Why? Because combination of characters happens at the level of fertilization. जब fertilization होता है तो कुछ क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से, कुछ मतलब हाफ क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से, 23 क्रोमोसोम्स, out of which 22 are autosomes, one is sex chromosome, and then 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फादर से, जिनमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होता है. सो मदर एंड फादर क्रोमोसोम्स जब मिक्स होते हैं, दैट इज व्हाई ऑफस्प्रिंग इज जेनेटिकली नॉन आइडेंटिकल, आई शुड से. ओके, यहां पे क्या होगा? एसेक्सुअल में एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, सो क्रोमोसोम्स एज इट इज पास ऑन होते हैं. देयरफॉर जेनेटिकली द ऑफस्प्रिंग्स, जो चिल्ड्रन, आप टेक्निकली बोले तो चिल्ड्रन जो होते हैं वो आइडेंटिकल होंगे अपने पेरेंट्स से, सेम दिखते रहेंगे. ओके, इसलिए हम इनको एक और वर्ड बोलते हैं व्हिच इज क्लोन्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे जाता हूं. चलो, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्दर लेट अस क्लासिफाई. सो अभी यहाँ पे आप ये जो आप वेरिएशंस देख रहे हो, दिस अगेन आपके टेक्स्ट बुक में इनमें से कुछ चीजें डिस्कस की है स्टूडेंट्स. फिजन डिस्कस किया गया है, मल्टीपल फिजन को अलग से डिस्कशन नहीं किया, बट देयर जस्ट गिवन अ डायग्राम जो मैं आगे स्लाइड्स में डिस्कस करूंगा. बडिंग, यस, दे डिस्कस दिस आल्सो. फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, ये सारी चीजें डिस्कस की गई हैं. स्पोर फॉर्मेशन आल्सो दे डिस्कस्ड, but this segregation has not been given in CBSE syllabus, which you can note down. Asexual reproduction is further classified as, which can be further considered under two headings, which is unicellular and multicellular. This segregation has not been given in CBSE syllabus. This is just for your knowledge. Now I am starting with asexual reproduction के types, students. Okay, let us quickly go to the first type, which is fission. Now what do I mean by fission? Fission means what? Breakdown. Fission means breakdown. So logically क्या होने वाला है? ये देखो, जो एक पूरा ये शेप आपको नजर आ रहा है, ये दो शेप्स में टूट गया, सो फिजन हो गया इसका, है ना. ये मैंने आपको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया. नाउ आई विल गो इनटू द थियरी व्हिच इज देयर इन योर टेक्स्ट बुक. सो आपके टेक्स्ट बुक में तीन एग्जांपल्स दिए गए हैं. फर्स्ट एग्जांपल इज अमीबा का एग्जांपल लिया है, जहां पे वी कैन से अमीबा का बॉडी कैन अंडरगो फिजन, ब्रेकडाउन अक्रॉस एनी प्लेन. किसी भी प्लेन से वो ब्रेकडाउन हो सकता है, उसका फिजन हो सकता है अमीबा का, to result into two daughter cells. Okay, next example लेते हैं. Next is leishmania. Okay, leishmaniasis कॉज करता है ये ऑर्गेनिज्म. आप इसके बारे में पढ़ोगे when you will come to 11th and 12th standard साइंस. अगर आप ऑप्ट करते हो तो आप इसके बारे में पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में. ओके, ग्रेड 12 CBSE सिलेबस. ओके, बाइनरी फिजन इन लेishmaniasis, इसमें स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये जो अलोन सिंगल बॉडी है, ये सिंगल बॉडी इस एक्सिस से अक्रॉस दिस एक्सिस, this body will divide itself, it will undergo
फिजन ओनली अक्रॉस अ सिंगल एक्सिस, रैंडमली किसी भी प्लेन से नहीं। अमीबा किसी भी प्लेन से डिवाइड हो सकता है, बट लेशमेनिया विल डिवाइड ओनली अक्रॉस अ सिंगल प्लेन। दिस हैज टू बी प्लेन फ्रॉम विच आई गेट टू डॉटर सेल्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल जो आपको दिया दैट इज मल्टीपल फिजन, मतलब ये जो सेल्स हैं सारे डिवाइड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल फिजन स्टूडेंट्स, where the body will keep on breaking, it will keep on undergoing the fission. Let us go to the next example, next type of asexual reproduction, which is fragmentation. Now what do you mean by fragmentation? Fragment मतलब क्या? टुकड़ा, हिस्सा, piece, correct? Piece मतलब शांति वाला piece नहीं, a piece of मतलब एक टुकड़ा। Okay, so if this is one organism under fragmentation, this will break into 3 different fragments. This might break into 3 different fragments. जैसे एक लॉजिकल एग्जांपल लिया मैंने 3 फ्रैगमेंट्स वाला, जरूरी नहीं हर बार 3 फ्रैगमेंट्स में ही ब्रेक हो, जैसे एग्जांपल है ये जस्ट। ओके, नेक्स्ट ये आपके टेक्स्ट बुक में इमेज दिया स्टूडेंट्स, यू कैन यूज दिस, you can understand by this image that a body, single body of Spirogyra, which is simple multicellular organism. इसके बारे में एक और किस्सा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, which I would like to discuss in a short while. Now, Spirogyra undergoes fragmentation to give you 3 fragments. Fragment number 1, fragment number 2, and fragment number 3. And all 3 fragments have the potential to develop into a new individual. So overall, from one body, I've got 3 new individuals, students. 3 new individuals. So this is example of fragmentation. Now I'll come to the main point which is given in your CBSE textbook. What they've said is, even after being a multicellular organism, why human beings cannot divide by fragmentation? Then example is, the reason is very simple. Rationale behind this is because Spirogyra is simple multicellular organism. It means that in Spirogyra there is no formation of different tissues. These cells do not differentiate to perform different functions, which is the case in human beings. So therefore I can say that all the cells over here are similar, hence they can divide by fragmentation. Okay, therefore simple fragmentation will result into formation of new individuals, but that is not the case in human beings, because human beings में अगर आप देखो तो कुछ सेल्स बन जाते हैं, स्टेम सेल्स जो आपके रहते हैं, that is blastula. उसके बाद जब फीटस का डेवलपमेंट होता है, आप ये और डिटेल में पढ़ोगे 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स, 12th साइंस में बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में पढ़ोगे आप। मैं भी आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि वो स्टेम सेल्स जब होंगे, ब्लास्टुला का जब फॉर्मेशन होगा, एंड देयर आफ्टर जब गैस्ट्रुलेशन होता है, ऑर्गेनोजेनेसिस जब चालू होता है, तो हर सेल को अपना अपना काम दिया जाता है। फॉर एग्जांपल कुछ सेल्स बन जाएंगे लीवर के सेल्स, एंड लेटर ऑन बन जाएंगे हेपेटोसाइट से, दे विल प्रोड्यूस एंटायर liver. Some cells will differentiate to form kidneys. Some cell will differentiate to form brain. So a complex जो organism आपको नजर आने वाला है by the help of formation of 11 organ systems. This organism cannot undergo fragmentation because सारे cells same type के अब नहीं रहे. That is not the case over here because सारे cells यहाँ पे same type के हैं. Hence it is called as simple multicellular organism. So it can divide by fragmentation. Okay, next type पे जाते हैं. Okay, मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे आपको डाला था. I'm sure आपको अब इसका आंसर मिल गया है. Next, asexual reproduction का next type है students regeneration. What is regeneration? Regeneration, generate होना मतलब क्या? पैदा होना. Regeneration मतलब क्या? वापस से पैदा होना. So किसी एक पार्ट से if I give rise to new individual, that is regeneration. If the individual is somehow cut or broken up into many pieces, many of these species grow into separate individuals. ये चेक करो, हमने इसको कट कर दिया 3 पार्ट में. देखो 1 2 3. Now each part will grow into a new individual. This is the second part over here. It will grow into a new individual. This is the third part over here. It will grow into a new individual. Next point. Regeneration is carried out by specialized cells which should have the capacity to divide. Okay. Next. Regeneration is not the same as reproduction because अगर रीजनरेशन रिप्रोडक्शन का अलग टर्म अगर मैं मान लूं तो इसका मतलब ये हुआ कि हर ऑर्गेनिज्म को वेट करना पड़ेगा कब वो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाए जब जाके वो रिप्रोडक्शन करे. सो ऑर्गेनिज्म शुड नॉट बी वेटिंग फॉर डिवीजन सो एज टू परफॉर्म रिप्रोडक्शन. Therefore, it cannot be held equivalent to reproduction. It is one of the steps by which body can be regenerated. So that is the perfect term, regeneration rather than reproduction. Okay, next term पे जाते हैं students. Next type is budding. Budding means what? एक vegetative bud produce होगा, like over here in this case, ये bud produce हुआ students, and ये bud will slowly grow into an individual like
ये देखो कंपोनेंट, ये देखो बन गया ये न्यू बर्ड, एंड नाउ दिस विल नाउ सेपरेट फ्रॉम द मेन पेरेंट बॉडी, मेन पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो गया यहाँ पे, एंड नाउ इट विल डेवलप फर्दर एज एन इंडिविजुअल. सो मेन पेरेंट बॉडी पे एक छोटा सा बर्ड ग्रो होगा, and it will later on after development, after a few stages of development, it will separate from the parent body to grow into a new individual. That is known as budding. Okay, next is vegetative propagation, students. What is vegetative propagation? Now propagation means what? Spreading across, है ना, और स्प्रेड करना, और प्रोग्रेस करना, और डाइवर्सिफाई होना. सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन मतलब क्या? वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जनरली लीव्स, देन स्टेम, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं प्लांट को ग्रो होने में, प्लांट को फ्लरिश होने में. सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या है? अगर आपने शुगर केन की जब खेती होती है, अगर आपने देखा हो तो आपको बेस्ट एग्जांपल आपके पास है. शुगर केन ग्रो, न्यू इंडिविजुअल्स और आई शुड से न्यू क्रॉप्स ग्रो आउट ऑफ शुगर केन फ्रॉम इट्स नोड्स. जो शुगर केन जब आप खाते हो तो सर्कल आपको नजर आएंगे शुगर केन, अगर आपने स्टिक हाथ में लिया तो जो सर्कल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नोड. सो 1 नोड, 2 नोड, ऐसे इस तरह से फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, ओवरऑल 2 नोड्स ओवर हियर. सिमिलरली नोड्स रहते हैं शुगर केन के स्टिक पे. उन्हीं नोड से, दोज नोड्स आर द ग्रोइंग पॉइंट, बिकॉज वहां पे एक बड प्रोड्यूस होगा, एंड दैट बड विल रिजल्ट इनटू न्यू प्लांट लेटर ऑन इफ प्रोवाइडेड विद प्रॉपर नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन. This is example of vegetative propagation. And then bryophyllum का भी हमको एग्जांपल टेक्स्ट बुक में दिया है. टेक्स्ट बुक में ये एग्जांपल नहीं दिया है, but I have put it over here just to make you understand. This is more better example and more simpler example. Now what about vegetative propagation, students? Root, stem and leaves can develop into an entire plant body. That is example of vegetative propagation. These plants can bear flowers and fruits earlier than those produced from the seed because already काफी कुछ हो रखा है. तो अगर मैं पूछूं कि सपोज एक प्लांट मैंने सीड से ग्रो किया और दूसरा प्लांट मैंने वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ही ग्रो कर दिया, सो कौन सा प्लांट मुझे जल्दी से जल्दी फ्रूट दे देगा? आंसर है वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाला. व्हाई? बिकॉज परमानेंट टिश्यूज प्लांट के, आप कब ये पढ़ोगे? आप ये पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड साइंस में, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एज वेल एज प्लांट रिप्रोडक्शन. ये तीनों चीजें मिला के जब आप पढ़ोगे 11th साइंस एंड 12th साइंस के तीनों चैप्टर्स बॉटनी के चैप्टर्स हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो मैच्योर टिश्यूज हैं, परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन वाले प्लांट में, हेंस उनके केस में फ्रूट्स फटाफट से बन जाएगा. डोंट हैव टू वेट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. जाइलम फ्लोएम वो सारी चीजें डेवलप होने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी डेवलप्ड हैं. सो फटाफट से प्लांट बनेगा, फटाफट से फ्रूट्स आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट, ऑफस्प्रिंग्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट. दैट इज for sure for all the types of asexual reproduction. Third point तो सबके लिए applicable है. Next students, let us now move on to the last type which is spore formation. Spore formation मतलब क्या? तो देखो students, आपके टेक्स्ट बुक में ये इमेज नहीं है, so better होगा अगर आप ये इमेज यूज करो because आपके टेक्स्ट बुक में सारी लेबलिंग्स नहीं दी गई हैं. Now students, this हाउस लाइक थिंग, ये जो छोटी सी बात, ये जो छोटा सा आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज स्पोरेंजियम. ठीक है, क्या नाम है? स्पोरेंजियम. प्लूरल अगर मैं आपको पूछूं कि ये भी एक स्पोरेंजियम है एंड ये सर्कल भी एक स्पोरेंजियम है, तो इन दोनों को एक साथ क्या बोलोगे? तो आप बोलोगे स्पोरेंजिया. इनसाइड दिस स्पोरेंजिया वी हैव मेनी स्पोर्स. क्या है इसके अंदर? स्पोर्स. एंड स्पोर्स यू कैन से आर काइंड ऑफ सीड्स. अगर आपको लॉजिकली समझना हो तो स्पोर्स ही वो सीड्स हैं जो न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करेंगे. सो स्पोर्स कहां बनते हैं? स्पोरेंजिया के अंदर. स्पोरेंजियम सिंगुलर वर्ड. स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स बनते हैं. एंड व्हेन दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, व्हेन दीज स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड, जब ये यहां से जब स्पोरेंजिया जब टूटते हैं तो स्पोर्स बाहर निकल के दे विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग new individuals. All right, so that is example of spore formation, which is another type of asexual reproduction, students. So done with asexual reproduction, let us move on to now sexual reproduction. In sexual reproduction, students, always you have to remember that there is gamete formation. Gamete मतलब क्या? Sex cells का formation होना जरूरी है. There have to be I should say two parents, male and female, दोनों का involvement जरूरी है. We will first take example of plants. Now plants में students angiosperms नाम आप पढ़ोगे आगे फ्यूचर में. Angiosperms are flowering plants. And flower जो होता है plants में, हमारे लिए, आपके लिए, हम सबके लिए फ्लावर एक ऐसी चीज है जो हम गिफ्ट करते हैं लोगों को, राइट? We give it to others just to make them smile and just to spread happiness.
बट व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ फ्लावर फॉर अ प्लांट? एक प्लांट के लिए फ्लावर इज अ यूनिट ऑफ रिप्रोडक्शन। फ्लावर की वजह से ही रिप्रोडक्शन होता है। सो सारे जो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं वो सब के सब यहीं पे फ्लावर में है। लेट अस चेक देम आउट। ओके, सो फ्लावर का ये जो पार्ट होता है स्टूडेंट्स, इसको अपन बोलते हैं स्टॉक या फिर बेस, या फिर इसका एक और नाम है पेडिसिल। जिस फ्लावर में पेडिसिल होता है उसको हम बोलते हैं पेडिसिलेट फ्लावर, और जिस फ्लावर में पेडिसिल नहीं होता उसको हम बोलते हैं सेसाइल फ्लावर। ओके, सेसाइल, SESSILE, सेसाइल फ्लावर मींस व्हाट? ये सेक्शन उस फ्लावर में नहीं होगा, जहां फ्लावर को पकड़ते हो वो सेक्शन होगा ही नहीं। अगर वो सेक्शन है तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं पेडिसिलेट, PEDICELLATE, पेडिसिलेट फ्लावर बोलोगे अगर रहेगा तो, सेसाइल फ्लावर बोलोगे अगर नहीं रहेगा तो। नेक्स्ट, नाउ इसके ऊपर पेडिसिल के ऊपर यहाँ पे थैलामस होता है, जो आपके टेक्स्ट बुक में ज्यादा डिस्कस नहीं किया गया है। थैलामस के ऊपर वी हैव 4 whorls ओवरऑल। सो लेट अस चेक दोस whorls। द फर्स्ट whorl ओवर हियर इज स्टूडेंट्स सेपल। पूरे वर्ल्ड का नाम, ये जो पूरा ग्रीन स्ट्रक्चर्स मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं, सपोज 3 ग्रीन स्ट्रक्चर्स होंगे, सो ऑल 3 ग्रीन स्ट्रक्चर्स टुगेदर, पूरी टीम को हम बोलते हैं कैलिक्स, ठीक है। और कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर को हम बोलते हैं सेपल। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन में कितने सेपल्स नजर आ रहे हैं? 1 2, अंडरस्टूड। सो दोनों को एक साथ अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूंगा कैलिक्स। टीम का नाम क्या है? ग्रीन टीम का नाम क्या है? कैलिक्स। और उनके इंडिविजुअल प्लेयर्स का नाम क्या है? सेपल। नेक्स्ट, सिमिलरली ये जो कलरफुल स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, है ना, जिनसे हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, रोज, रेड रोज, येलो रोज, ऑरेंज रोज, पिंक रोज, है ना, ये सारे जो कलर होते हैं रोज के, ये कलर्स किसकी वजह से आते हैं? पेटल्स की वजह से आते हैं। ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, ये एक पेटल है, और ये पेटल की जो पूरी टीम है इसको हम क्या नाम देंगे? करोला। सो इस टीम का नाम था कैलिक्स, इसकी टीम का नाम होगा करोला, जिनके इंडिविजुअल मेंबर्स को हम बोलते हैं पेटल। यू कैन सी ओवर हियर, दीज आर द इंडिविजुअल टर्म्स। ये इंडिविजुअल टर्म्स मैंने स्क्रीन पे रखे हैं। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज द मेल रिप्रोडक्टिव whorl which is present in the flower. So ये जो आपको पार्ट स्टूडेंट्स दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को मैं बोलता हूं स्टेमिन, ठीक है, स्टेमिन। इस स्टेमिन में ये जो पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट जो है आपको दिख रहा है, दैट इज फिलामेंट। एंड ये जो आपको लोब की तरह नजर आ रहा है, बायलोब स्ट्रक्चर, 2 लोब्स जो ऐसे नजर आ रहे हैं, ऐसे इस तरह से, सो इसको अपन बोलते हैं एंथर। सो एंथर इज बायलोब्ड, 2 लोब्स होते हैं एंथर के, बंद हो चुके हैं, फिलहाल बंद आपको नजर आ रहे हैं। सो एंथर इज बायलोब्ड, ये देखो ये रहा वर्ड एंथर। एंथर इज बायलोब्ड, फिलामेंट इज दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। फिलामेंट का रोल क्या होता है? एंथर को प्रॉपर हाइट पे लेकर जाना, जहां से एंथर जब ओपन होगा तो एंथर के अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर निकलेंगे, वो पोलन ग्रेन्स आके बैठ जाएंगे यहां पे। तो इसका नाम क्या है? अब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव की बातें कर रहे हैं स्टूडेंट्स। ये पूरा जो सेगमेंट है ये फीमेल पार्ट है। अभी जो आपने पढ़ा स्टेमिन वो मेल पार्ट था। सो मेल पार्ट के इंडिविजुअल मेंबर का नाम क्या है? स्टेमिन। कैलिक्स के इंडिविजुअल मेंबर का नाम क्या है? सेपल। करोला के इंडिविजुअल मेंबर का नाम क्या है? पेटल। नेक्स्ट, गाइनोशियम, दैट इज द फीमेल पार्ट, एंड्रोशियम, दैट वाज द मेल पार्ट। सो गाइनोशियम में इंडिविजुअल मेंबर का नाम क्या है? कार्पेल। कार्पेल में भी स्टूडेंट्स दिस पार्ट इज नोन एज ओवरी which contains ovule. Next, ovary के ऊपर क्या है? this part, this is stylishly style. Okay, next, this part is stigma. Next, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। now अच्छा, one more thing now, अभी कैसा होता है, ये जो यहां जैसे मैंने आपको बोला कि एंथर में स्टूडेंट्स पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये पोलन ग्रेन्स जाके बैठ जाएंगे इस स्टिग्मा पे। अगर सेम फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकल के सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे गया तो हम उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन। इफ इन केस स्टूडेंट्स इस फ्लावर का पोलन ग्रेन रिलीज होके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके बैठता है तो हम उसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। दिस अगेन यू विल स्टडी इन योर 11th स्टैंडर्ड। सो सेल्फ पॉलिनेशन मींस ओनली वन फ्लावर इज इन्वॉल्व्ड, उसी फ्लावर के मेल फीमेल आपस में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। इफ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन 2 different flowers, that is known as cross pollination. Okay, and next term students, next term पे मैं आ रहा हूं,
If in a single flower both male as well as female parts are present, then we call that flower as bisexual flower. Okay, bisexual flower. Both male as well as female parts are present. But if only male part is present in a flower, it is known as staminate flower. If only female part is present, it is known as pistillate flower. Why pistillate? कार्पल का एक ऑल्टरनेटिव टर्म होता है पिस्टिल, सो वहां से ये नाम आ रहा है. अगेन आई एम यूजिंग दीज टर्म्स बिकॉज ये सारे टर्म्स आपको फ्यूचर में आने वाले हैं. सो अगर आपका बेस अभी रेडी हो रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न दीज टर्म्स ऑल्सो. If you are well aware of these terms, that will serve you in a very better way, in a better manner to understand basic things when you come into the 11th standard students, when you study the biggest chapter of 11th standard, which is morphology of flowering plants. Okay, next 11th science by the way. चलो, I'll go to the next topic. Now remember this is stigma. वापस मैं स्टिग्मा पे आ जाता हूँ स्टूडेंट्स. यहाँ पे कौन आके बैठ गया देखो, चेक करो, पोलन ग्रेन्स आके बैठ गए. सो पोलन ग्रेन्स में से क्या डेवलप होगा? पोलन ट्यूब डेवलप हो रहा है. पोलन ट्यूब कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स? स्टाइल के थ्रू होते हुए पोलन ट्यूब ओवरी में चला गया. ओवरी में कहा चला गया? ओव्यूल के अंदर चले गए पोलन ट्यूब. पोलन ट्यूब में क्या है? पोलन ट्यूब के अंदर है दो मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट्स आर देयर. ओके, अब यहां जो लेबलिंग की गई है स्टूडेंट्स, वो लेबलिंग मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं. ओके, सो ये जो 3 आपको ऊपर डॉट्स नजर आ रहे हैं, इनको हम बोलते हैं एंटीपोडल्स. ओके, नीचे जो ये जो ग्रीन बड़ा सा सेल है, इसको मैं बोलूंगा एग सेल. क्या बोलूंगा इसको मैं? एग सेल. इसके बाजू में जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड्स. ये देखो यहाँ पे नाम दिया सिनर्जिड्स. मतलब क्या? ये छोटे छोटे एग सेल के पड़ोसी, एग सेल के फ्रेंड्स आप बोल दो. चलो, एंड देन जो बीच में 2 न्यूक्लियाई नजर आ रहे हैं, 2 न्यूक्लियाई, आई एम सेइंग न्यूक्लियस नहीं बोल रहा हूं मैं. These 2 nuclei which are present in the central cell are known as polar nuclei. क्यों इनका नाम पोलर न्यूक्लियाई पड़ गया? बिकॉज ये जो आप पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हो स्टूडेंट्स, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं एम्ब्रियो सैक. इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? एम्ब्रियो सैक. एंड एम्ब्रियो सैक के डेवलपमेंट के वक्त 2 न्यूक्लियस, एक यहां से और एक नीचे से, एक न्यूक्लियस ऊपर से, एक न्यूक्लियस नीचे से, 2 न्यूक्लियस सेंटर में आ जाते हैं और फिर इनको बोलते हैं कि ये दोनों न्यूक्लियस पोल से आए हैं. इस पोल से आया, एक इस पोल से आया, देयरफॉर पोलर न्यूक्लियाई. ओके, नेक्स्ट. नाउ स्टूडेंट्स देखो, इमेज को जूम किया गया है. सो दिस इज अगेन पोलन ट्यूब. येलो कलर का स्ट्रक्चर है. पोलन ट्यूब के अंदर कितने मेल गैमेट्स दिख रहे हैं मुझे? 2 मेल गैमेट्स नजर आ रहे हैं. Out of these 2 male gametes students, 1 male gamete will fertilize the egg cell. इस वाले सेल को, ग्रीन जो बड़ा सेल है, उसके न्यूक्लियस को फर्टिलाइज कौन करेगा? एक मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट सपोज. देन द सेकंड मेल गैमेट वेस्ट नहीं जाने देंगे हम. सेकंड मेल गैमेट जाके फर्टिलाइज करेगा, इन दोनों न्यूक्लियाई के साथ जाके फ्यूज हो जाएगा. सो दैट मींस 2 चीजें हो रही हैं. पहला फर्टिलाइजेशन किसके बीच में हुआ? मेल गैमेट एंड एग सेल. दूसरा फर्टिलाइजेशन किसके बीच में हुआ? सेकेंड मेल गैमेट एंड पोलर न्यूक्लियाई. सो ओवरऑल कितने प्रोडक्ट्स बनेंगे? 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे. पहला प्रोडक्ट जो बनेगा दैट विल बी जाइगोट, है ना? फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ आ गया. प्लांट के बच्चा, जो प्लांट का बच्चा है, उसका पहला सेल प्रोड्यूस हो गया, जाइगोट. एंड सेकेंड प्रोडक्ट इज एंडोस्पर्म. इफ यू नोटिस प्रॉपर्ली, एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर. ट्रिप्लॉइड क्यों? 1 2 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिले, 3 न्यूक्लियस आपस में मिल गए, तब जाके बना एंडोस्पर्म. करेक्ट है? 2 न्यूक्लियस पहले से ही थे और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस. सो कितने सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए? 3 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स मिले उसको. देयरफॉर इट इज ट्रिप्लॉइड, 3n. एंड जाइगोट को कितना मिला? एक मेल गैमेट से, एक सेट फीमेल गैमेट से. सो वो तो अभी भी डिप्लॉइड ही है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स. दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन. नाउ एंडोस्पर्म का रोल क्या होता है? इट विल एक्ट लाइक टिफिन बॉक्स, नरिशमेंट की तरह, खाने की तरह इसका रोल है. इसको एज अ फूड ट्रीट करेगा फॉर नरिशमेंट. दिस इज फॉर नरिशमेंट ऑफ द ग्रोइंग एम्ब्रियो. जब जाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में, तो वो एम्ब्रियो इसी एंडोस्पर्म को कंज्यूम करता है टू ग्रो इटसेल्फ. I'll go to the next topic students, which is male reproductive system. Now what do we have in male reproductive system? To be very to the point, to the CBSE 10th syllabus, I would say कि मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत ही शॉर्ट तरीके में एक्सप्लेन किया गया है सीबीएसई क्लास 10 में. इफ आई हैव टू कंपेयर दिस विद एसएससी सिलेबस, सो यहाँ पे आपको बहुत कम डिटेल डिस्कशन किया गया है. आई शुड से नॉट डिटेल, इन फैक्ट वेरी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मेल एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. So I'll start with the first part, that is testes students. Okay, so
टेस्टिस कहां रहते हैं मेल में? दे आर आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी के भी बाहर, एब्डोमिनल कैविटी बाहर। दे आर हैंगिंग इन द स्क्रोटम, स्क्रोटम करके हाईली पिगमेंटेड पाउच रहता है, एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच उसको बोलते हैं, जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं ह्यूमन मेल के केस में। ओके, those testes produce sperms and sperms are the male gametes. Now sperms यहां पे जब प्रोड्यूस हो जाएंगे तो वो एपिडाइडाइमिस, ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, फोकस करो लेजर पे, जो ये स्ट्रक्चर इसको हम बोलते हैं एपिडाइडाइमिस। सो स्पर्म्स जब प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस में, ये देखो टेस्टिकल लिखा है यहाँ पे, ठीक है, टेस्टिस बोलो या टेस्टिकल बोलो। सो टेस्टिकल में जब स्पर्म्स प्रोड्यूस होते हैं तो वो पहले कहां जाते हैं? एपिडाइडाइमिस में चले जाते हैं। एपिडाइडाइमिस में उनका स्टोरेज एज वेल एज नरिशमेंट होता है, एंड देन दो स्पर्म्स विल एंटर, यहां नीचे आके फिर कहां पे एंट्री हो जाता है उनका? वास डिफरेंस में, ठीक है, देखो यहां पे लिखा नाम वास डिफरेंस। इस ट्यूब में एंट्री मार के ये स्पर्म्स ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ ट्रैवल करते हैं और यहां पे आ जाते हैं स्टूडेंट्स। यहां पे आने के बाद अब ये जो आपको ग्लैंड दिखा है, देखो ये जो ग्लैंड आपको दिख रहा है, ये जो बड़ा सा ग्लैंड है, पहली बात है जो बड़ा सा ग्लैंड है स्टूडेंट्स, दिस इज ब्लैडर, दिस इज नॉट अ ग्लैंड, दिस इज अ ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, जहां पे यूरिन स्टोर होता है। सो इसके पीछे की तरफ आपको कौन सा ग्लैंड नजर आएगा? जो यहाँ पे लाइटली एकदम दिया गया है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। क्यों उसको आगे नहीं पीछे तरफ दिखाया गया? बिकॉज वहीं पे उसका पोजीशन है। सो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड के साथ कौन सा पाइप जुड़ जाता है? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का जो ओपनिंग होता है उस पाइप के साथ वास डिफरेंस जाके मिक्स हो जाएगा। सो इन दोनों पाइप को, अब जो पाइप बना नया पाइप, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग ऑफ दीज टू पाइप्स, दैट पाइप इज नोन एज कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट। ओके स्टूडेंट्स, अब कॉमन इजैक्यूलेटरी डक्ट में ये जो यहां से स्पर्म गया तो सेमिनल वेसिकल से उसको क्या मिलेगा? तो सेमिनल वेसिकल जो ग्लैंड्स होते हैं वो भी एक फ्लूइड रिलीज करेंगे, जिसमें उस फ्लूइड में नरिशमेंट एज वेल एज टू काउंटर अटैक एसिडिक एनवायरनमेंट कुछ केमिकल्स रहते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू नेम दोस केमिकल्स बिकॉज दे आर नॉट देयर इन योर सिलेबस। सो सेमिनल वेसिकल्स के जो सिक्रीशंस होते हैं, दीज सिक्रीशंस मिक्स विद द sperm and now we are going ahead with the semen students। अभी सीमेन बनना शुरू हो चुका है। नेक्स्ट, ये जो सीमेन है दैट इज स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स के सिक्रीशंस, दे विल प्रोग्रेस फर्दर। अब ये कहां आ जाएंगे? प्रोस्टेट ग्लैंड के पास आ जाएंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड, फ्यूचर में आप प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का कुछ पढ़ने वाले हो। सो प्रोस्टेट, फ्यूचर मतलब 11th साइंस, ओके 11th 12th साइंस। सो प्रोस्टेट ग्लैंड अगेन दे विल रिलीज समथिंग इन दिस स्पर्म प्लस सेमिनल वेसिकल ग्लैंड फ्लूइड में एक और फ्लूइड आएगा जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन होगा। सो नाउ टोटल कॉम्बिनेशन क्या क्या हो गया? स्पर्म जो टेस्टिस ने प्रोड्यूस किया था, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड ने जो प्रोड्यूस किया वो फ्लूइड, प्लस प्रोस्टेट ग्लैंड ने जो प्रोड्यूस किया वो फ्लूइड। ये तीनों इकट्ठे कहां मूव होंगे? अब ये तीनों यहां पे आ गए यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा से दे विल मूव डाउनवर्ड्स स्टूडेंट्स। डाउनवर्ड जब वो आएंगे तो उनको यहीं पे, आपके इस डायग्राम पे तो नहीं दिखाया गया है, बट यहीं पे दे विल अगेन फेस थर्ड ग्लैंड, उनको थर्ड ग्लैंड मिलेगा व्हिच इज नोन एज काउपर्स ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। सो उस ग्लैंड से अगर अलग सिक्रेशंस निकलेंगे जिनकी वजह से अब टोटल कितने मिक्सचर्स हो गए? स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड्स के सिक्रेशंस, प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशंस, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशंस टुगेदर मिक्स होके ये क्या बन जाएगा? सीमेन बन जाएगा, जो इजैकुलेट हो जाएगा पेनिस से बाहर ड्यूरिंग इजैकुलेशन, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। दिस विल कम आउट ऑफ पेनिस स्टूडेंट्स एंड दिस इज known as semen. Now very important point over here is which you should know, in case of male students, urethra which is inside the penis is a common passage for two things. यूरेथ्रा के थ्रू ही दो चीजें बाहर आती हैं। यूरेथ्रा के अंदर से यूरेथ्रा एक्ट्स लाइक अ पाइप फॉर आउटलेट फॉर सिक्रीशन ऑफ टू थिंग्स। फर्स्ट इज सीमेन एंड सेकेंड इज यूरिन। यूरिन भी यहीं से बाहर आता है। सो बिकॉज यूरिन स्लाइटली एसिडिक है तो उस एसिडिटी में स्पर्म्स मर ना जाए, स्पर्म्स को अटैक ना कर दे एसिडिक एनवायरनमेंट, देयरफॉर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट विल गो टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नाउ इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन, जैसे आपने मेल के केस में स्पर्म्स की पढ़ाई की थी, फीमेल में आपको ओवम कंसीडर करना पड़ेगा। सो ओवम, जैसे अभी कंपेयर करके पढ़ाई करो,
मेल में स्पर्म्स कौन प्रोड्यूस करता था? टेस्टिस, राइट? सो फीमेल में ओवम कौन प्रोड्यूस करेगा? ओवरी। स्क्रीन पे चेक करो, लेजर फॉलो करो मेरा। ओवरी विल प्रोड्यूस ओवम एंड दिस ओवम विल एंटर ओवर हियर इन्फंडिब्यूलम। ओवरऑल इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब, ऑल्सो नोन एज ओविडक्ट। सो फेलोपियन ट्यूब के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे ये जो पार्ट है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, इनको हम बोलते हैं फिम्ब्रिये। क्या बोलते हैं इनको? फिम्ब्रिये। फिम्ब्रिये के थ्रू ओवम यहां आ जाएगा। स्टूडेंट्स क्या काम करो, जो मैं वर्ड्स आपको बोल रहा हूं, अगर आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं तो वही वर्ड्स अपने साथ रखना जो आपके टेक्स्ट बुक में है। दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यू कैन रिवाइंड एंड रीवाइंड दिस एंटायर वीडियो टू वापस से, अगर आपको लिसन करना है उस वर्ड को कि क्या वर्ड मैंने बोला, आप बार बार वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, बट उसी वर्ड को अपने साथ रखो जो भी आपके टेक्स्ट बुक में है। अगर आपको लग रहा है कि आई कैन absorb, I can digest all the words, then definitely you can write all the words in your answer sheet also. You'll get full marks for that. Okay, so ovum released from ovary will go into fallopian tube through this fimbriae. एक और वर्ड होता है ostium, उसके थ्रू एंट्री मारेगा ओवम। यहां आ गया ओवम, चेक करो, इस एरिया का नाम क्या है? इनफंडिब्यूलम। अब यहां से आगे आगे ओवम जा रहा है, यहां आ गया ओवम, चेक करो। अब इस रीजन का नाम स्टूडेंट्स क्या? यूटर्न है। इस रीजन का नाम है एम्प्यूला। एम्प्यूला में जब ओवम आ जाता है, ओवम यहां पे, यहां तक, जब तक ओवम यहां तक पहुंचेगा तब तक, अगर सपोज फर्टिलाइजेशन होना है स्टूडेंट्स, तब तक स्पर्म्स कहां से एंट्री मारेंगे? स्पर्म्स ऑलरेडी यहां आ गए, यहां पे इजैकुलेशन होता है स्पर्म्स का, सीमेन यहां पे रिलीज किया जाता है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इन दी वजाइना। सो स्पर्म यहां से होते हुए थ्रू यूट्रस स्टूडेंट्स, स्पर्म कीप ऑन ट्रैवलिंग इनटू दिस डायरेक्शन एंड दे कम एंड मीट ओवम ओवर हियर। सो ओवम एंड स्पर्म का मीटिंग पॉइंट क्या है? एम्प्यूला। सो दिस इज वेयर फर्टिलाइजेशन विल हैपन। नेक्स्ट, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवम विल, आई शुड नाउ से इट इज जाइगोट, है ना? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? जाइगोट बन गया, which is the first cell. Now zygote will undergo continuous division. अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स? माइटोसिस हो रहा है ना? सो माइटोसिस से ये जाइगोट डिवाइड होते होते मोरुला बन जाएगा, मोरुला से ब्लास्टुला बन जाएगा। अब ब्लास्टुला यहाँ आके अटैच हो जाएगा, किसको अटैच हो जाएगा? इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस, इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस को अटैच हो जाएगा। दैट इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस इज नोन एज endometrium. It is known as endometrium. Understood students? Now one more thing, आपके टेक्स्ट बुक में ये भी डिस्कशन किया गया है कि स्पर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। नाम नहीं दिया गया, बट they have said कि germ cells, that is sperms, are produced from germinal cells, that is spermatogonium. अब ये वर्ड आपको यूज नहीं किया गया, but this is just for your understanding. कैसे प्रोडक्शन होता है स्पर्म का इनसाइड द टेस्टिस? स्पर्मेटोगोनियम विल गिव राइज टू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स which will give rise to produce secondary spermatocyte. secondary spermatocyte से बनते हैं spermatid and spermatid develop हो जाते हैं sperms में. Okay, so ये process है sperms के production का. Similarly, ओवरी के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे oogonia होते हैं, oocyte में जो डेवलप हो जाएंगे. oogonia मतलब क्या? सिंपलेस्ट सेल, जो कब होते हैं बाय द वे पता है? जब बच्ची, जब बेबी गर्ल अपने मदर के यूट्रस में है, जब उसका जन्म हो रहा है, यहाँ पे जब बेबी गर्ल है, जब मदर ने कंसीव किया, उसी वक्त बेबी गर्ल के ओवरी में क्या आ जाता है? oogonia. अंडरस्टूड? दैट मींस इसलिए बोलते हैं बहुत बार कि अ मदर जब प्रेग्नेंट होती है, सपोज तो व्हेन मदर इज प्रेग्नेंट, एट दैट टाइम आई शुड से व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट एंड इफ शी इज हैविंग अ बेबी गर्ल इनसाइड हर, at that time in fact she is also having her granddaughter inside her, because mother के अंदर baby girl, and baby girl का ओवरी जो उसको डेवलप हो चुका है, उसके अंदर कौन है? कुछ सेल्स हैं जो उसके बच्चे होंगे. so granddaughter is already there, granddaughter or grandson you should say. okay, next, so ओवरी, यहाँ पे ओवरी के अंदर ओवम डेवलप होंगे किसके थ्रू? oogonia, oocyte, primary oocyte, secondary oocyte, tertiary oocyte, Graafian follicle, ovum will be released. so ये जो प्रोसेस है, ये जो स्टेप्स है आपको बताए नहीं गए हैं, बट दिस इज हाउ द प्रोसेस गोज अहेड. ये सारे आपको स्टेप्स, ये सारे आपको टर्म्स नहीं बताए गए हैं. दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि बहुत सिंपल रखा गया आपके सीबीएसई सिलेबस को. I'll move on to the next topic students. Next topic is if fertilization happens. That means अगर यहाँ से, ये देखो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ से ओवम रिलीज हुआ तो दो चांसेस हैं. ओवम जब यहाँ पे रुक गया के एम्प्यूला में, तो ओवम को यहाँ पे या स्पर्म मिलेगा या स्पर्म नहीं मिलेगा. दैट मींस अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है और अगर प्रॉपर टाइम पे हुआ है, व्हेन ओव्यूलेशन हैज हैपेंड, जब ओवम बाहर आया, अगर उसके साथ साथ कोइंसाइड हुआ है
सेक्सुअल इंटरकोर्स का टाइम, देन स्पर्म यहाँ पे जरूर मिलेंगे एंड स्पर्म ओवम का फर्टिलाइजेशन हो सकता है। Why I'm saying हो सकता है, because if contraceptive pills यूज किए गए हैं तो वो फर्टिलाइजेशन को भी we can inhibit. Okay, next, or else there are many contraceptive barriers जो हम आगे डिस्कस करने वाले, जिसकी वजह से हम ये मीटिंग इनहिबिट कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। इफ इन केस फर्टिलाइजेशन हैपेंस तो ओवम बन जाएगा जाइगोट एंड फर्दर डेवलपमेंट होगा। बट व्हाट इफ फर्टिलाइजेशन ना हो तो? सो अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा स्टूडेंट्स? ये देखो ओवम जो है, अभी ये इन्होंने कैसे देखा स्टूडेंट्स इमेज में, ये इमेज आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, मैंने ये नेट से लिया जस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल। वेरी नाइसली इन्होंने बताया है कि देखो ये रहा ओवरी, ध्यान से देखो लेजर को, ओवरी के अंदर से ओवम रिलीज हुआ, तो ये जो यहाँ पे अलग अलग इवेंट हो रहे हैं उन्होंने बाहर जूम करके बताया। तो देखो ये रहा यहाँ पे ओवम, इसका उन्होंने बाहर बना के दिखाया, बड़ा सा ओवम है ना। फिर ओवम कहाँ चला गया? एम्पुला में, वहां पे उसको कौन मिले? ये सारे देखो स्पर्म्स आपको दिख रहे हैं आसपास। अब ये मल्टीपल स्पर्म्स में से सिर्फ एक स्पर्म की एंट्री होगी, स्पर्म अंदर आते ही ये मेल न्यूक्लियाई, ये फीमेल न्यूक्लियाई मिक्स हो जाएंगे, दिस इज फर्टिलाइजेशन। उन्होंने क्या बोला है? फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म प्रोन्यूक्लियाई, दोनों के न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा विच विल फॉर्म जाइगोट। ये जाइगोट यहां बन गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो बन गया वो ऐसे अंदर यूट्रस की तरफ मूव हो रहा है, और जैसे जैसे वो यूट्रस की तरफ जा रहा है उसका डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, सो ये सारे डेवलपमेंटल स्टेजेस आपको डिस्कस नहीं किए गए हैं, यू हैव दिस इन 12th स्टैंडर्ड, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, यू कैन गो थ्रू दिस डायग्राम इफ नीडेड, दैट आई लीव ऑन यू। ओके, नेक्स्ट, अच्छा एक बार आपको और डिस्कस किया गया टेक्स्ट में, प्लासेंटा के बारे में बताया गया, तो आई वुड लाइक टू टेक यू टिल देयर स्टूडेंट्स। जाइगोट के बाद क्या बन जाता है? दो डिवीजन चालू हो गया, सो यहां कहीं अपन पहुंच गए मोरुला में। मोरुला मतलब कलेक्शन ऑफ सेल्स। मोरुला विल फर्दर डेवलप इनटू ब्लास्टुला, एंड ब्लास्टुला और मोरुला में ये फर्क आपको नजर आएगा कि ब्लास्टुला में कैविटी नजर आ जाएगी आपको। नाउ दिस ब्लास्टुला विल फर्दर मूव टुवर्ड्स द यूट्रस का इनर लाइनिंग, जहां पे यूट्रस का इनर लाइनिंग एंडोमेट्रियम के कुछ सेल्स, एंडोमेट्रियम मतलब क्या? यूट्रस का इनर मोस्ट लाइनिंग, सो एंडोमेट्रियम के कुछ सेल्स एंड ब्लास्टुला के कुछ सेल्स मिक्स होके बन जाएंगे प्लासेंटा। ठीक है, तो वो प्लासेंटा, दैट प्लासेंटा यू कैन से इट इज अ कॉमन पूल वेयर द बेबी एंड मदर कैन एक्सचेंज थिंग्स बिटवीन देम। The most over here in this partnership, who is the major provider? Mother is the major provider. Okay, so baby will derive nutrition and oxygen, everything from the mother over here. Next to this. Next, if fertilization doesn't happen, then what? अगर fertilization नहीं होता है तो क्या होगा? Suppose ओवम यहाँ पे बाहर आया, एम्पुला में खड़ा हो गया, बट उसको नहीं मिला, स्पर्म आया ही नहीं, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, so what will happen? ओवम will further go same direction में जाएगा, and यहाँ पे the lining will be lost, लाइनिंग फिर से लॉस्ट हो जाएगी। पहली बार देखो, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो जाता है, एंडोमेट्रियम का शेडिंग हो जाता है, एंडोमेट्रियम के इनर लाइनिंग टूट जाते हैं, एंड दैट लीड्स टू ब्लीडिंग स्टूडेंट्स, व्हिच इज व्हाई द ब्लीडिंग ऑकर्स एवरी मंथ आफ्टर प्यूबर्टी इन केस ऑफ गर्ल्स, एंड इट इज गुड साइन ऑफ हेल्थ। So if girls are having menstruation, there is nothing to get embarrassed students. आपको menstruation से embarrassment नहीं आना चाहिए। Menstruation अगर हो रहा है, if menstrual cycle is proper, you should be very proud of yourself. And the same message should go to boys also. You should respect this physiological condition which is there in a girl. That makes her a potential mother. She can be mother in the later stages of her life if menstrual cycle is very proper. Okay, so that is what happens if fertilization doesn't happen. Menstrual cycle will start happening. They have not discussed menstrual cycle over here. SS में इसका भी डिस्कशन थोड़ा बहुत किया गया है. I'll go to the next part students, जहाँ पे contraceptive methods डिस्कस किए गए हैं. So this is last part of your chapter where they have discussed usage of condoms, usage of contraceptive pills, usage of copper T. ये सारी चीजें देखो यहाँ पे यूज की जा रही हैं, जिनकी वजह से we can prevent reproduction, we can prevent fertilization and therefore pregnancy and therefore reproduction students. Okay, next part पे आ जाते हैं. Next part आपको reproductive health के अंदर contraceptive methods के अलावा, okay, I'm so sorry I've not changed the title over here. You should have sexually transmitted diseases students. So while sexual health, see students, sex education I should say, सेक्स एजुकेशन पे लेक्चर्स होना, सेशंस होना बच्चों के, टीनेजर्स के स्पेशली इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एट द सेम टाइम वी शुड अप्रिशिएट द फैक्ट दैट बॉडी इज नॉट रेडी फॉर एक्चुअल सेक्सुअल इंटरकोर्स, एंड फॉर अ गर्ल टू बी मदर शी नीड्स फिजिकली सम टाइम.
So that sometime has to be appreciated and it has to be understood by everybody. Okay, now next, moving further, if I go to the sexually transmitted disease, obviously because it is such an intimate activity, sexual intercourse, diseases can also spread through this, and those diseases are known as sexually transmitted diseases, jahan pe there are many types. These are all the types of sexually transmitted disease. They have not discussed pathogenesis, डिजीज कैसे होता है, डिजीज के सिम्टम्स क्या है, कुछ भी डिस्कशन नहीं किया आपकी बुक में. दे जस्ट एनलिस्टेड द डिजीजेस. So I'll also stay over there. I'll just enlist these are the diseases. You can go ahead, you can learn the names, and the Human Health and Disease in 12th standard will take you through certain diseases out of this list. So that's it from my side, students. Hope you have revised this chapter very nicely through this video. Hope you have watched the previous video also where I discussed life processes chapter with you. Do leave a comment for me if you need any other topic from my side, and if in case आपको किसी chapter का specific topic पे बड़ा सा video चाहिए, detailed discussion चाहिए, do let me know. Also if you want me to solve certain papers, certain past year papers or certain chapters के सारे past year papers के questions, you have to leave a comment in the comment box to let me know if we can improve further, students. Thank you very much. Share this video with your friends also. Bye bye.